So today we are going to start with the concept of GDP and welfare. All of us know GDP indicates the level of output, that is the production of goods and services, right? So higher GDP would imply higher level of output. Higher level of output would imply higher level of income. And more the income, more the availability of goods and services with the people, which means their welfare would increase with increase in GDP. अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है यानी उस कंट्री की इनकम लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, which means people will be availing more goods and services, right? So that would of course imply improvement in the welfare of the people. But is higher GDP always considered uh, to be increasing the welfare of the people, or are there any exceptions to it? क्या हमेशा जीडीपी के बढ़ने को ये माना जाएगा कि हमारी कंट्री के लोगों का वेलफेयर बढ़ गया है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है? नो बेटे, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, that is there are certain situations or matters where we say that no, increase in GDP does not imply increase in the welfare of the people. So what are these exceptions? First is distribution of income. So beta, this might happen that the GDP of the country may increase, say, from rupees 100 crore to rupees 500 crore. 2015 में it was 100 crore. 2017 पे GDP might increase to 500 crore. But जब हमने ये देखा कि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गई है, दैट इज देयर इज presence of income inequalities. Along with the rise in GDP, there is rise in income inequalities. That is, rich are getting richer, poor are getting poorer. तो बेटे अगर रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ, तो हम कैसे कह सकते हैं द पुअर पीपल आर गेटिंग पुअरर एंड रिच हु ऑलरेडी आर एंजॉयिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी इनकम बढ़ने से उनका वेलफेयर नहीं बढ़ा, रादर पुअर पीपल का वेलफेयर कम हो गया है. सो टू से दैट increase in GDP implies increase in welfare would not be correct in the situation where rise in GDP is followed by unequal distribution of GDP, right? So second exception is with a composition of GDP. GDP 100 करोड़ से 500 करोड़ हो गई है. So किन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी है? लेट अस सपोज ये जो राइज आया है जीडीपी में, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज. हमने अपनी कंट्री में एयरक्राफ्ट, आर्म्स, एम्यूनिशन, ऐसी चीजों की प्रोडक्शन बढ़ा दी है, ठीक है? तो इसका बेटे आम लोगों के ऊपर उनके वेलफेयर में कोई राइज नहीं आया है. अगर हमारी जीडीपी की जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो किस कारण से बढ़ा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स. सो वी कैन नॉट से that this has led to increase in the welfare of the common people. Indirectly yes, डिफेंस गुड्स भी हमारी कंट्री के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि उनके वेलफेयर में कोई इंक्रीज आया है, राइट? Thirdly, bete, non-monetary exchanges. We are living in India, so still in any country, not only in India, there are many goods and services being produced which are not sold in the market. बहुत सारी ऐसी चीजों की प्रोडक्शन हो रही है जो कि मार्केट में बिकने के लिए नहीं आती है, ठीक है? यहाँ तो वो बाटा सिस्टम प्रिवेल होता है, गुड्स गेट एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है? एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक्सचेंज कर लेती है, या कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज लाइक आई टीचिंग माय ओन सन, आई एम प्रोड्यूसिंग अ सर्विस,
but this will not be accounted for while estimating GDP. Your mother cooking food for you, she is, engaged in production activity, but that not being an economic activity is not estimated, not included while estimating GDP. Similarly, इंडिया में कुछ ऐसा सेक्टर भी है जहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रिवेल होता है, यानी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं आते. सो टू दैट एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड. ठीक है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज का कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है. These are not accounted for while estimating GDP. So to that extent, GDP remains underestimated, right? So how can we say that GDP, indicates welfare of the people, right? Fourth bit exception है externality. What is externality? Now this is a new word for you. There are certain activities which may provide benefit to you. कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपने उनके लिए कोई प्राइस पे नहीं किया. Generally, whenever you go to the market to get any good, any service, any benefit, you have to pay for it. आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, लेकिन कई बारी आपको कोई चीजें बिना पेमेंट करे मिल जाती है. You get certain benefits without paying anything for it. ठीक है, and sometimes the opposite may happen. Any harm may be done to you without your doing anything wrong. आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी उस चीज का नुकसान, किसी ऐसी चीज जो कि आपने नहीं की लेकिन आपको उसका हार्म पहुंच रहा है. जस्ट ए जनरल एग्जांपल, क्लास में शोर हो रहा है, 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, उनमें से 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग क्वाइटली listening to the teacher, but a few of them are making so much of noise that teacher gave punishment to whole of the class. Okay, now these 5 students who were not doing anything, they are also affected, adversely affected, without their doing anything wrong. ठीक है, so अगर आपको किसी चीज का फायदा हो रहा है बिना कुछ पेमेंट करे, तो आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिलती है. और अगर आपको किसी चीज का नुकसान हो रहा है बिना आपके कोई गलती किए, without you are being penalized without doing anything wrong, or you are getting benefit without paying anything for it, these are known as externalities, outside factors. जब आपको कोई बेनिफिट या कोई आपको लॉस दे जाते हैं, उनको एक्सटर्नैलिटीज कहा जाता है. Externalities are of two types: positive externality and negative externality. Positive externalities, when you get benefit of something without paying any price for it. For example, आपके घर के बाहर एक पार्क था, गवर्नमेंट ने वो पार्क डेवलप कर दिया, वहाँ पे राइड्स लगा दी जहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं, पेवमेंट बना दी जहाँ पे यू कैन वॉक, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए which give you fresh air, right? So this is the positive externality. You have not paid anything for the development of the park, but you are getting benefit from it. So this is the positive externality which you are getting. Similarly, अगर आपके घर के आगे किसी ने एक ऐसी फैक्ट्री खोली जो कि बहुत स्मोक पोल्यूशन क्रिएट करती है, आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं सुबह सुबह, आपके पर फेस के ऊपर काला धुआं पड़ता है और आपको उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई. So this is the negative externality. Without you doing anything wrong, you are being penalized, आपको harms मिल रहे हैं. So ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपको बिना पे किए कोई बेनिफिट दे जाती हैं या बिना कुछ किए कोई लॉस दे जाती हैं, इनको एक्सटर्नैलिटीज कहा जाता है. So positive as well as negative externalities, these are not accounted for while estimating GDP.
ठीक है। सो अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज देखें तो उससे जीडीपी में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज नहीं काउंट होती है, नहीं, दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर, सो टू दैट एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी नहीं अकाउंट फॉर की जाती है, टू दैट एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स ओवर estimated. So GDP cannot be considered as an index of welfare as it does not take into account externalities, positive or negative externalities. Right? यहाँ तक बेटे किसी को कोई doubt? These are given in your book, so you can do it from there only. Okay. So because GDP cannot be, mere increase in GDP. From this we can conclude that from mere increase in GDP, it does not indicate improvement in the quality of life of people. यानी लोगों का वेलफेयर, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी के बढ़ने से लोगों का वेलफेयर बढ़ गया है, ठीक है। अगर जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, अगर इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, अगर डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन के कारण वो जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि ये जीडीपी इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ welfare. So our economists have come up with a new concept, that is the concept of green GNP. GNP कह लो या GDP बेटे, ठीक है। तो green GNP का concept दिया है हमारे इकोनॉमिस्ट ने। What is green GNP? बेटे green GNP it's an indicator of sustainable use of natural resources. Indicator of सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें मालूम है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाती है ये हमारे नेचुरल, उसके साथ साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट होते जाते हैं, तो कमिंग ईयर्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचते। लेकिन अगर हम इस तरह से जीडीपी बढ़ाएं कि इट लीड्स टू सस्टेन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड along with that equitable benefits ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जीडीपी के बढ़ने का जो बेनिफिट है वो हर सेगमेंट को इक्विटेबली मिले। ये नहीं है कि रिच को ज्यादा मिले और पुअर को कम मिले, इक्विटेबल बेनिफिट्स अगर मिलते हैं लोगों को, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ग्रीन जीएनपी, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट डिनोट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट without causing environmental pollution, without depletion of natural resources and with equitable distribution of income. Is it clear bete? Green GDP का concept क्या show करता है? That there should be sustained use of natural resources and equitable benefits of the economic development. How do we calculate green GNP? Simple. Green GNP is equal to GNP minus loss of natural capital. So एक साल में आपकी कैपिटल में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको अगर आप डिडक्ट कर देंगे, लेट्स से आपकी जीएनपी आई थी 500 करोड़, बट ड्यू टू दैट इंक्रीज इन जीएनपी 50 rupees natural capital has been lost. So 450 would be your green GNP. Clear? So this is all about GDP and welfare. If any child is having any doubt, you can ask. किसी भी बच्चे को डाउट है बेटे तो पूछ लो। अंशिता, why have you joined so late? Maulik, you are also facing lot of connectivity issues. Better do something about it. जो भी प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा ठीक करिए।
Okay, no one having any doubt? Pulkit, Payal, Akriti? No, ma'am, no doubt. बेटे किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क. So let's start with the methods of measuring national income. We have come to the next chapter, new chapter, methods of measuring national income. But till now we have studied that there exists triple identity in the economy. That is, whatever production takes place, जितनी भी प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में, जितनी भी वैल्यू एडिशन होती है, that takes the form of income, and whatever income is generated, that takes the form of expenditure. So this triple identity always remain in the economy, right? So अगर प्रोडक्शन इनकम के बराबर है और इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है हमेशा, तो हम प्रोडक्शन स्टेज पर भी जीडीपी मेजर कर सकते हैं या नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं. हम इनकम स्टेज पर भी कर सकते हैं और हम एक्सपेंडिचर स्टेज पर भी इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के. सो व्हाटएवर एट व्हाटएवर स्टेज यू कैलकुलेट जीडीपी और नेशनल इनकम, इट विल रिमेन सेम. सो बेटे अगर हम प्रोडक्शन स्टेज पे नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, we make use of product method, also known as value added method. If we measure national income at income stage, it is known as income method, also known as factor payment or distributive share method. और अगर हम एक्सपेंडिचर स्टेज पे करते हैं नेशनल इनकम को मेजर, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. सो जिस मर्जी मेथड से आप नेशनल इनकम को एस्टिमेट करिए, योर आंसर विल बी सेम. ठीक है. सो यहाँ से बेटे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है. हमें नेशनल इनकम या नेशनल इनकम का कोई भी एग्रीगेट, जैसे कि जीडीपी एमपी, जैसे कि जीएनपी एफसी, राइट, कोई भी एग्रीगेट आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इनकम मेथड एज इट इज द सिंपलेस्ट मेथड. सो बेसिकली द फंडा बिहाइंड इनकम मेथड इज, जितनी की भी प्रोडक्शन होती है वो इनकम जनरेट हो जाती है. इनकम, अब जो प्रोडक्शन होती है, production is done basically with the help of four factors of production: labor, land, capital and entrepreneur. ठीक है. ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके प्रोडक्शन करते हैं. अब कहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस में. तो सबसे पहले इनकम मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप विच वी फॉलो इन इनकम मेथड इज वी आइडेंटिफाई all the producing enterprises, and then we classify them into three broad categories, which is primary sector, secondary sector and tertiary sector. ठीक है. जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे कि कोई भी जहाँ पर ये मार्कर बन रहे हैं, कोई भी जहाँ पे व्हाइट बोर्ड बन रहा है, लैपटॉप बन रहे हैं, कंप्यूटर्स बन रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं, खाना बन रहा है, रेस्टोरेंट है, schools हैं, colleges है, all these are producing enterprises. So these are identified.
and then these are classified into primary, जिसमें हम farming and allied activities ले लेते हैं, secondary जिसमें manufacturing and construction ले लेते हैं, and tertiary which includes all kinds of services. So this is the first step which we follow when we estimate national income using income method. Second step to be followed is we identify or we classify factors of production into four broad categories: labor, land, capital, and entrepreneur. And then we estimate the factor payments to all these. इनकी factor payments को हम estimate करते हैं. तो हर सेक्टर में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में इनकी फैक्टर पेमेंट्स हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड द सम टोटल ऑफ these factor payments gives us domestic income. जब हम इनको ऐड कर लेते हैं, it gives us domestic income. So we take the sum total of all these factor payments, it gives us domestic income. If you are interested in finding out national income, what we will do, we will estimate net factor income from abroad. What is net factor income from abroad? Factor income received by residents from abroad minus factor income paid to non-residents. So this NIFA is added to domestic income and it gives us national income. This is theoretical part of it. मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया है कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं. सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सारे स्टेप. स्टेप 1 is to identify all the producing enterprises in our domestic territory and then classify them into primary, secondary and tertiary sector. After that, step 2 is to classify the factors of production, right, as labor, land, capital and entrepreneur and estimate their rewards. इनको जो rewards मिलते हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. इनको एस्टिमेट करके इनका सम टोटल ले लो. प्राइमरी में अलग ले लो, सेकेंडरी में अलग ले लो, टर्शियरी में अलग ले लो. उन सबको ऐड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा. इन सबकी फैक्टर इनकम को जब हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम. ठीक है. अब if we are interested in finding out national income, so we will add net factor income from abroad to domestic income and we will get national income. So these are the steps which we follow. Now coming to in detail of these steps, firstly we will see the factor income. पहला step तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबको मालूम है कैसे क्लासिफाई करते हैं. हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं उनको हमने ऐड करना है, एस्टिमेट करना है. सो बेटे हमें मालूम है लेबर को वेजेस मिलती हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज के बदले या रिस्क उठाने के बदले प्रॉफिट मिलता है. ठीक है. सो दिस नॉन टेक्निकली वी बीन डूइंग सिंस 9th standard that labor gets wages, landlord gets rent and so on. ठीक है. But from national income viewpoint there are certain differences in the terminology. The reward which is paid to the labor for providing their factor services is called as compensation of employees. It's not called as wages. We use a broader term for the reward of labor and that term is called as compensation of employees.
ठीक है. What is compensation of employees? It is the reward or remuneration paid to the labor in return for their factor services. Now, what does compensation of employee include? I am a labor in economics viewpoint. I am providing my services to the school. What my school is giving to me in return for my services, I will call it as compensation of employees. But what is there in my compensation? Firstly, पहला component जो है बेटे मेरी कंपनसेशन का, वो ऑफ कोर्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो मुझे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मेरे को सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है मेरा एम्प्लॉयर, वो मेरी इन कैश वेजेस एंड सैलरी, दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. वो एक मेजर कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का. ठीक है. इसके अलावा यू मस्ट बी वंडरिंग, ठीक है, वेजेस ही तो मिलती है, सैलरी ही तो मिलती है मैम को, और क्या मिलता है? ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू द एम्प्लॉइज गेट. दे गेट certain wages and salaries in kind also. In kind का मतलब क्या है बेटे? You can write it down. You can take your notes along with it. Wages and salaries in kind implies it is also known as fringe benefits or perks or non-monetary benefits, जो कि apart from wages in cash we get certain non-monetary benefits. कुछ हमें perks मिलते हैं. For example, if I get free lunch from my school, if I get free medical facilities from my school, if my wards education is made free by my school authorities, ये सब क्या है? और अगर मेरे को कोई ड्राइवर मिला हुआ है, या मुझे कुछ ऐसे पर्क्स मिले हुए हैं, फ्री लंच आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ओके, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए घर दिया है and no rent is being charged by my employer for that. That is again a reward for my services. ठीक है. और these are certain facilities. I have मेरे को कोई लोन प्रोवाइड किया हुआ है मेरे एम्प्लॉय ने, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता. ठीक है. तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन, वो चाहे नहीं ले रहा, लेकिन अगर जितना भी इसका इंटरेस्ट बनता है, लेट्स से 1000 रुपए महीने का इंटरेस्ट बनता है उस लोन के ऊपर, बट माय एम्प्लॉयर इज नॉट चार्जिंग दैट इंटरेस्ट फ्रॉम मी. ठीक है. सो अगेन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माय कंपनसेशन. वो मेरा एक रिवॉर्ड है जो मुझे सर्विसेज के बदले मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है. ठीक है. सो दीज आर दी वेजेस इन काइंड. ये सब वेजेस इन काइंड है, और ये मेरी कंपनसेशन में क्यों आ रही है? क्योंकि मैं इसके बदले कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ अपने एम्प्लॉयर. ठीक है. ओके. सो दीज टू कंपोनेंट्स आर क्लियर. One is wages in cash. This everyone is familiar with. Second is wages in kind. इसके अलावा बेटे employers contribution to social security schemes. हमारी गवर्नमेंट ने सारे एम्प्लॉइज के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रखी हुई हैं. सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कल को एम्प्लॉई जब ओल्ड एज में चला जाएगा, he will no longer be able to work, so from where would he earn money? तो
अगर वो आज से ही एक फंड क्रिएट कर देगा, एम्प्लॉयर उसके नाम का एक अकाउंट खोल देगा जिसमें कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसके पास इतना सफिशिएंट फंड हो जाएगा कि वो अपनी ओल्ड एज को अच्छे से अपनी लाइवलीहुड उसमें से निकाल सके। सो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी प्रोविडेंट फंड लिख लो आप, साथ साथ अपने क्विक नोट्स ले लो। प्रोविडेंट फंड, इट कुड बी ग्रेच्युटी और इट कुड बी इंश्योरेंस। आपके एम्प्लॉयर ने आपकी इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसका प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की है that is again a component of compensation of employees। यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? okay, you have to remember that we have to include, अगर आपको compensation of employees estimate करने को कहा जाता है, you have to include only employers contribution, employees contribution इसमें नहीं आएगी, ठीक है? okay, how many of you are sleeping?